Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and Muhammad, peace be upon him, is the last prophet of Almighty Allah. Today our topic is present simple or present indefinite tense. Simple, why it is called simple? Simple means uncomplicated and basic structure of sentence, just first form of verb and easy to understand. For example, I go. And present indefinite, why it is called indefinite? Indefinite means it does not specify when an action happens and how often it happens. For example, I go to school. Sentence structure for declarative sentences. First of all, subject plus first form of verb plus object or complement. If the subject is he, she, it or singular, then add s or es with first form of verb. Otherwise, we use only first form of verb. For example, he gets up early in the morning. They go for a walk daily. For negative sentences, the structure will be first of all subject, then do not or does not, plus first form of verb plus object or complement. If the subject is he, she, it or singular, then we use does not with first form of verb. Otherwise, we use only don't with first form of verb. For example, he doesn't get up early in the morning. They don't go for a walk daily. For interrogative sentences, the structure will be first of all we put does, then then subject plus first form of verb plus object or complement, and then we put question mark. On the other sense, we put do plus subject plus first form of verb plus object or complement, then we put question mark. If the subject is he, she, it or singular, then we use does with first form of verb. Otherwise, we use only do with first form of verb. Examples: does she get up early in the morning? Do they go for a walk daily? Usage of present simple tense, it is very important. There are some situations where we use this tense. For example, to express general truths. For example, the sun sets in the west means all the general things, all the general you may say conclusions, वो वाली चीज़ें जो कि आम ज़िंदगी में मसलन 2 और 2 4 होते हैं। सूरज मशरिक़ से तलू होता है, मगरिब में ग़ुरूब होता है, और इसी तरह जो प्रूफ वर्ब्स हैं ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो हैं वो हम इसी टेंस को यूज़ करते हुए उनको कंपाइल करते हैं। एग्जांपल यहाँ पे है द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट है जी हैबिट्स। व्हेन यू आर गोइंग टू से समथिंग दैट इज़ इन योर डेली रूटीन, यानी आपकी एक हैबिट बन चुकी है, चाहे 1 या 2 दिन आप नहीं भी करते, लेकिन एक ऐसा सेट आपका सीक्वेंस बन चुका है कि वो आपकी हैबिट में शामिल है, तो उसके लिए भी इस टेंस को हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है फ्यूचर टाइम टेबल। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा तरतीब जो कि आम रूटीन में होती हो, चाहे फ्यूचर हो चाहे पास्ट हो,
जब आपने उस तरह की चीज़ की बात को एक्सप्लेन करना है तो देन वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सपोज खैबर एक्सप्रेस लीव्स एट 10 PM, यानी चाहे ये वाली बात आप 10 PM से पहले करें या 10 PM से बाद, लेकिन क्योंकि खैबर एक्सप्रेस एक स्पेसिफिक स्केड्यूल को फॉलो कर रही है तो आप उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। इसी तरह कोई भी चीज़ है, कोई भी रूटीन की मामला है, जैसे द बैंक ओपन्स एट 9, इट मीन्स कि बैंक ओपन्स हर रोज़ तो नहीं खुलता, सैटरडे को नहीं ऑन होता, इसी तरह संडे को नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद हम उसको स्केड्यूल में फिट करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम यूज़ करते हैं तो उनके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी विद टेलिंग स्टोरीज। फॉर एग्जांपल, एट लास्ट द किंग अराइव्स एंड टेक्स द क्वीन आउट ऑफ द प्रिजन। सो ऐसे सेंटेंसेस जो कि पास्ट के ही होते हैं लेकिन आप स्टोरी में नरेशन फॉर्म में बयान करते हैं तो उसके लिए भी हम इस सेंटेंस को, इस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हिस्ट्री के कुछ वाक़यात कोई भी हों, जब आप नैरेटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उनके लिए भी आप इस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहम्मद बिन कासिम अटैक्स एट सिंध। नेक्स्ट है फॉर न्यूज़पेपर हेडिंग। न्यूज़पेपर की हेडिंग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट किस में होती है, इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। मे बी के इवेंट्स जो हैं वो कोई फ्यूचर के हों चाहे पास्ट के हों। सपोज इंडिया एंटर स्पेस, तो ये वाली बात हो सकता है कि कुछ टाइम पहले हुई हो, कुछ दिन पहले हुई हो, लेकिन जब आपने उसको न्यूज़पेपर की हेडिंग बनानी है तो देन वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी तरह है कोई परमानेंट सिचुएशन है किसी के बारे में। सपोज़ हम कहते हैं अहमद कहाँ काम करता है, तो हम कहेंगे अहमद वर्क्स इन लंदन। तो उसका मुराद ये नहीं होगी कि वो उस वक्त भी लंदन में बैठा हुआ काम कर रहा है, उसका मकसद ये है कि उस जगह पे वो काम कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर एग्जांपल है, सपोज़ अली वर्क्स इन अ बैंक, तो बैंक में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया हो वेयर अली वर्क्स, वेयर डज़ अली वर्क, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अली जो है कहाँ पे काम करता है। तो मे बी कि ये क्वेश्चन रात को पूछा गया हो, शाम को पूछा गया हो, लेकिन अली का जो सीक्वेंस है, जो स्ट्रक्चर है काम का, वो क्योंकि एक बैंक में काम करता है, सो हम कहेंगे अली वर्क्स इन अ बैंक। इसी तरह फ्यूचर है आफ्टर व्हेन और अंटिल के साथ भी। फॉर एग्जांपल है ही विल नॉट गो द ऑफिस अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। तो अंटिल और व्हेन वाला जो क्लाज है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। जैसे हम कैसे करते हैं, फर्स्ट कंडीशनल्स में भी करते हैं। ये देखें आप, फर्स्ट कंडीशनल्स के साथ भी हम इफ़ क्लाज के साथ सिंपल प्रेजेंट ही का यूज़ करते हैं, जिसमें दोनों बातें फ्यूचर में कही गई होती हैं। सपोज लिखा हुआ इफ़ ही गोज़ टू लाहौर, अगर वो लाहौर जाता है, ही विल ब्रिंग बुक्स फॉर मी, तो वो मेरे लिए बुक्स लाएगा। अब यहाँ पे भी आप देखें, जो इफ़ क्लाज है, इफ़ क्लाज के साथ आप सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे और जो नेक्स्ट उसका जो मेन क्लाज है उसको हम सिंपल फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है जी नॉन प्रोग्रेसिव के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी स्टैटिक कोई कंडीशन हो। फॉर एग्जांपल, आई एम श्योर दैट ही इज़ इनोसेंट। योर टास्क फॉर दिस, write 5 sentences of each situation on your notebook. Thanks for watching.